Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular set. So this says a small institution runs playgroup in 3 different villages A, B and C. The maximum capacity of these playgroups is 10, 20 and 30, right? So the total number, the maximum capacity of this playgroups is already given. That is APC का कितना है 10, 20 and 30 respectively. This number will play a very crucial role. So let's remember that. Children in the age group 1 to 4 years are taken care of in one of these play groups. Also, sorry, I'm recording this in a classroom, so please ignore the voice. Children in the age group 1 to 4 years are taken care of in one of these play groups. So age group is from 1 to 4. That is also important in this set. Once a child attains the age of 5, he or she has to leave the play group and take admission in a primary school, right? So once they attain the age of 5, they have to take admission in a primary school. So if you understand till this particular point, age 1 पे admission होगा, right? age 1 पे admission होगा. So basically 3 साल वो एक्चुअली प्ले ग्रुप के साथ रहेंगे इन देयर सेकेंड ईयर, इन देयर थर्ड ईयर एंड इन देयर फोर्थ ईयर. वंस दे कंप्लीट द फोर्थ ईयर एंड दे रीच द एज ऑफ 5, राइट, they each reach the age of 5, they have to leave the play group and they take admission in a primary school. Fine. Now the following graph shows the average age of children at these play groups in the years 16 to 18. So 16, 17, 18 का average दिया हुआ है. With these play groups were when these play groups are full to capacity. Now this is important. जैसे इस ग्राफ को अगर आप इंटरप्रेट करो, इस बार ग्राफ को, तो यहाँ पे जैसे A का 2016 में एवरेज इज 3. नाउ ये भी बोल रखा है कि दे आर ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी. तो ABC का रिस्पेक्टिवली कितना था 10, 20, 30. सो इफ आई टॉक अबाउट A, देयर आर 10, कैपेसिटी कितनी है 10 एंड 10 के साथ एवरेज कितना आ रहा है 3.0. That means the total sum of ages of all the children studying that playgroup A in 2016 would be nothing but 3 into 10, average into number of terms, that is 3. Similarly, A में 2017 में the total sum of all ages of all the people, right, of all the people. अब all the people मतलब हमेशा 10 है because it is clearly said they were operating at full capacity. तो A में 2017 में भी 10 लोग होंगे, that is important. तो 10 लोग होंगे, उनका एवरेज कितना है 2.4. That means the total sum of ages in 2017 in this playgroup A would be 2.4 into 10, that is 24. Similarly, बाकी playgroups के लिए भी हम same interpretation लेके आ रहे हैं, but yes, remember ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो फुल कैपेसिटी वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट है, दैट इज एक्चुअली चेंजिंग. तो फॉर एग्जांपल बी में 20 हो जा रहा है, तो बी में फॉर एग्जांपल 2017 दिस रेड वाला पार्ट, तो इसका एवरेज कितना आ रहा है 2.6. सो 2.6 इंटू 20 होगा, दैट इज 52. सो 52 वुड बी द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन दिस प्ले ग्रुप बी इन 2017. सो ये डेटा हमारे लिए सारा इंपॉर्टेंट होगा. सो देयर विल बी 6 सेट्स ऑफ डेटा. तो ए में 3 साल का, बी में 3 साल का और सी में भी 3 साल का. Next, what is given? Only 1-year-old children took admission in these play groups. So 1 साल का अगर आप हो गए हो तभी आप एडमिशन ले रहे होगे, राइट. अब 1 साल का अगर आप हो गए हो और एडमिशन ले रहे हो, तो जैसे इसमें ना इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल A में 2016 में ये तो हमने कंक्लूड कर लिया कि यहाँ पे टोटल सम ऑफ एजेस कितना बनने वाला है 30. नाउ आउट ऑफ दिस 30 हमें पता है कि कौन कौन से एज वाले चिल्ड्रन होंगे वहाँ पे, कौन कौन से एज के चिल्ड्रन होंगे. तो देयर विल बी 1-year-old चिल्ड्रन, देयर विल बी 2-year-old चिल्ड्रन, देयर विल बी 3-year-old चिल्ड्रन एंड देयर विल बी 4-year-old चिल्ड्रन. आई होप दिस इज क्लियर. जो 1 ईयर का हो गया है वो एडमिशन लेगा, फेयर इनफ. तो उस पर्टिकुलर प्ले ग्रुप में इन एनी पर्टिकुलर ईयर 4 टाइप के बच्चे उसमें इनरोल्ड रहते हैं, जिनकी एज 1 ईयर हो चुकी है, जिनकी एज 2 ईयर हो चुकी है, जिनकी एज 3 ईयर हो चुकी है, मतलब 3-year-old चिल्ड्रन एंड सिमिलरली 4-year चिल्ड्रन. इससे ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज इट वॉज क्लियरली मेंशन्ड एट द स्टार्ट कि वंस द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 5 ही और शी हैज टू लीव द प्ले ग्रुप एंड एनरोल इन अ प्राइमरी स्कूल. तो 4 एजेस के बच्चे इस पर्टिकुलर स्कूल में या फॉर दैट मैटर किसी भी प्ले ग्रुप में एक्चुअली पढ़ते हैं. तो देयर विल बी डिफरेंट एजेस. Now the main part of this set is ये जो 2016 में प्ले ग्रुप में ये 30 लोग हैं, ये 30 लोग में कुछ बच्चे 1-year-old वाले होंगे, कुछ बच्चे 2-year-old वाले होंगे, कुछ बच्चे 3-year-old वाले होंगे, कुछ बच्चे आपके
4 ईयर ओल्ड वाले होंगे, वही आपको एक्चुअली में यहाँ पे नंबर फिगर आउट करना है. बिकॉज इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम्स इन प्ले ग्रुप ए इन 2016, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज लेस देन इक्वल टू 2 years, मतलब 1 year old वाले भी चाहिए, 2 year old वाले भी चाहिए. इसमें व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज 3 years इन द ईयर 2017 इन प्ले ग्रुप बी, तो 3 year old एज वाले चिल्ड्रन चाहिए. तो बहुत बार ना, जैसे मे बी इससे आपको नहीं क्लिक कर रहा है ये वाला पार्ट कि इसको 4 नंबर में तोड़ना है बेसिकली, ये जो भी आपका आनेगा. ये 30 नहीं, बेसिकली 30 तो सम ऑफ एजेस है, उसको भी हम देखेंगे. बट जो भी टोटल नंबर होगा, जो टोटल कैपेसिटी होगा, जैसे ये 1 2 3 4 हमेशा प्ले ग्रुप ए में हमेशा एडअप करके आपका एट एनी पॉइंट एट एनी ईयर इन एनी ईयर वो हमेशा एडअप करके आपका 10 आएगा. बट इन दैट प्ले ग्रुप बी यही सेम चारों आपके चीजें ऐड करके हमेशा 20 बनेगा. प्ले ग्रुप सी में वो सब कुछ ऐड करके 30 बनेगा. वो नंबर चेंज होता जाएगा, राइट. बट आपको ये चीज समझ में कहां से आएगी? मे बी यू कैन लुक एट द प्रॉब्लम्स ऑल्सो, देन यू रियलाइज कि कहीं ना कहीं मेरे को ये चारों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी फॉर ईच प्ले ग्रुप एंड ईच रिस्पेक्टिव. I hope this part is clear. This is very important to this set, right? Basics and information है, but that is very crucial and that makes this set nice. I would say this is a very good set because इसका लॉजिक थोड़ा सा अभी तक का जो सेट्स इन्वॉल्व है उससे थोड़ा डिफरेंट है. एंड इसमें कुछ इक्वेशंस के थ्रू बेसिकली हम सॉल्व करना चाहेंगे. एंड दीज आर द काइंड ऑफ इक्वेशंस विच यू गेट इन वेन डायग्राम्स ऑल्सो. सो प्रीवियस वीडियो पे किसी ने कमेंट करा था, I remember the name SS172, राइट. तो वेन डायग्राम है ना, जिस टाइप से आपकी ढेर सारी इक्वेशंस बनती है उसी टाइप से इसमें भी इक्वेशन बनेगी. द सेम काइंड ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, उनके स्ट्रक्चर्स. तो आपको सोचना पड़ेगा कि उन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें, राइट. नाउ हैविंग डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस, लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्विंग वाला पार्ट. तो हम क्या करेंगे ना, इस बार ग्राफ की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने आपको बोला कि ए में ये फुल कैपेसिटी में तीनों ईयर्स में है, तो 10 इंटू एवरेज 10 इंटू एवरेज 10 इंटू एवरेज करके टोटल सम ऑफ एजेस आएगा हमेशा. एंड ये याद रखना कि हमेशा वो चारों जो टाइप आपने तोड़ेंगे, 1 year old वाले, 2 year old वाले, 3 year old वाले, 4 year old वाले, इन ईच ईयर उनका एडिशन हमेशा ए वाले प्ले ग्रुप के लिए हमेशा कितना रहेगा? 10 रहेगा, क्योंकि फुल कैपेसिटी दिया हुआ है तीनों के लिए. बी में हमेशा 10 रहेगा, सॉरी 20 रहेगा, और सी में हमेशा 30 रहेगा. सो यूजिंग ऑल ऑफ दिस, जितना भी हमने डिस्कस किया है, वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल लाइक दिस. इसमें हम सारी पॉसिबिलिटीज एक्चुअली फिट करना चाहेंगे. एक बार जल्दी से इसको गो थ्रू करते हैं. तो ईयर बेसिकली 3 हमने रखे. प्ले ग्रुप ए 2016 में इसमें कुछ 1 year old वाले होंगे, 2 year old वाले होंगे, 3 year old वाले होंगे, 4 year old वाले होंगे. एंड उन सबका टोटल सम ऑफ एजेस, नॉट द नंबर ऑफ पीपल. नंबर ऑफ पीपल हमेशा ये चारों वैल्यूज ऐड करके याद रखना हमेशा 10 आएगा. बट द टोटल सम ऑफ एजेस ऑफ ईच ऑफ देम, ऑल ऑफ देम will add up to what? 30. Similarly, B में 2016 में I'm using that same average वाला क्वेश्चन, एवरेज वाला पार्ट, ये जो पीछे दिया हुआ है, इसी बार ग्राफ को मैंने कन्वर्ट कर दिया है. B का टोटल आपका 2016 40 बनेगा, C का 63 बनेगा, A का 17 में 24 बनेगा, एंड सो ऑन. दीज आर द डिफरेंट नंबर्स, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. सो विल स्टार्ट वन बाय वन. थोड़ा लंबा है बट द लॉजिक रिमेन सेम. वंस यू सॉल्व वन पार्ट ऑफ दिस, ए के लिए मैं भी सॉल्व कर लिया, यू हैव टू रेप्लिकेट दैट थिंग फॉर बी एंड सी एज वेल, एंड विल बी एबल टू फिगर आउट ऑल द नंबर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट फिगरिंग आउट ऑल द नंबर्स. सो लेट्स से 2016 में ए में लेट्स से ए लोग हैं. यहाँ पे 2 year old वाले आपने बी रखे, 3 year old वाले अपने सी रखे, एंड 4 year old वाले अपने डी रखे. नाउ आगे हम क्या नंबर्स फिल करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट यस थोड़ा सा आपको यहाँ पे विजुलाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 ब्लॉक्स में क्या नंबर जाएंगे. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आप रियलाइज करो कि यहाँ पे ए बी सी डी में से ये जो डी बच्चे हैं ये 4 year old के मतलब 5 year old हो जाएंगे. बिकॉज ये 5 year old हो जाएंगे तो फिर ये तो इस प्ले ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे. ऑल्सो ये जो पहले 1 year old वाले थे, यही बच्चे क्या हो जाएंगे? 2 year old वाले हो जाएंगे. तो ये ए बच्चे पूरे पूरे यहां शिफ्ट हो गए. ये 2 year old वाले जो बी बच्चे हैं ये 3 year old वाले बन जाएंगे. एंड सिमिलरली ये जो सी बच्चे 3 year old वाले हैं 2016 में, वो 2017 में क्या हो जाएंगे? 4 year old वाले हो जाएंगे. ऑल्सो just because the total capacity of this playgroup is not going to change. तो पहले a plus b plus c plus d था, अभी एडिशन तो a plus b plus c plus d होना चाहिए ना, दैट इज 10. a plus b plus c plus d हमेशा यही एडिशन आना चाहिए. तो a b c तो आगे शिफ्ट हो गया. दैट मीन्स जितने यहां से निकले
उतने ही आपके प्ले ग्रुप में 1 ईयर ओल्ड वाले ज्वाइन करेंगे, बिकॉज ने ये बोला था नो चाइल्ड लेफ्ट द प्ले ग्रुप इन द मिडिल ऑफ द टर्म एंड ओनली 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन टुक एडमिशन। तो हमेशा एडमिशन जो होगा वो 1 ईयर ओल्ड वाले का ही होगा। तो यहां में क्या नंबर आना पड़ेगा, क्या वेरिएबल डालोगे, बेसिकली ये डी, क्योंकि तभी आपका कांस्टेंट रहेगा सम, तभी टोटल एडिशन हमेशा 10 बन पाएगा। एबीसी क्योंकि है तो आपका बचा हुआ वेरिएबल क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। एंड यूजिंग दिस द सेम लॉजिक, यहां एबीसी आपने एक एक और आगे शिफ्ट करा देना है। तो ए वाला यहां आ जाएगा, 3 ईयर ओल्ड वाला बन जाएगा, बी आपका 4 ईयर ओल्ड वाला हो जाएगा, और यहां पे ये जो 1 ईयर ओल्ड वाले आपके डी थे वो अभी 2 ईयर ओल्ड वाले हो जाएंगे। एंड द सेम थिंग, बिकॉज इन चारों का एडिशन हमेशा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आना है, ए बी और डी लिखे हुए हो, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। राइट, दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक बट अ ब्यूटीफुल लॉजिक आई वुड से। ठीक है, अब यहां से हम ए बी सी डी की वैल्यूज फिगर आउट करना स्टार्ट करेंगे। अब कैसे वैल्यूज फिगर आउट करें, सबसे पहले अगर आप नोटिस करो, जैसे यहां से ना मेरे पास एक तो बेसिक इक्वेशन यही है, व्हाट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक तो बेसिक इक्वेशन मेरे पास यही है कि ये हमेशा एडअप करके कितना आएगा, 10 आएगा। दूसरी मेरे पास ना ये एवरेज की इक्वेशन है, ये 30, 24 और 22 जो सम ऑफ एजेस है। तो यहां के हिसाब से क्या बनेगा, ए बच्चे आपके 1 ईयर ओल्ड वाले हैं तो ए, प्लस 2 बच्चे आपके बी बच्चे आपके 2 ईयर ओल्ड है, दैट इज 2b सम ऑफ एजेस, सी बच्चे 3 ईयर्स 3c प्लस 4d एंड दिस इज इक्वल टू 30। सिमिलरली यहां से अगर मैं इक्वेशन देखूं तो यहां से मेरे पास सेकेंड इक्वेशन सेम थिंग बनाऊंगा, d प्लस 2a प्लस 3b प्लस 4c एंड दिस इज इक्वल टू 24। यहां से अगर मैं देखूं तो c प्लस 2d प्लस 3a एंड प्लस 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। ये 3 इक्वेशन है एंड इसके साथ ही सपोर्टिंग इक्वेशन मेरे पास ये है। अब क्या करना है, बेसिकली ऑब्वियसली सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करना ही मेन पार्ट है कि ये इक्वेशन तो आपने बना ली, और आप ये बोल भी सकते हो कि आपके पास बेसिकली 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन था, थंब रूल ऑफ इक्वेशन इज सैटिस्फाइड, 4 वेरिएबल है 4 इक्वेशन है, सो विल बी एबल टू सॉल्व द यूनिकली वैल्यूज आ जाएगी। बट इसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करें, तो देखो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट साइड में 30 माइनस 24 आएगा, इधर क्या होगा, जैसे इधर नोटिस करो है तो वही वेरिएबल्स ना, माइनस करेंगे तो 4d माइनस डी बनेगा कितना, 3d। उसके बाद a माइनस 2a, 2b माइनस 3b, 3c माइनस 4c, हमेशा डिफरेंस कितने का आएगा, 1 1 1 1, मतलब माइनस a माइनस b माइनस c, तो 3d माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c। आई होप दिस इज क्लियर, राइट, माइनस ए माइनस बी माइनस सी आएगा तो माइनस कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 30 माइनस 24 दैट इज 6। नाउ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है यहां से डी के टर्म्स में लिख सकता हूं, दैट इज 10 माइनस ऑफ डी। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 3d माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज सिंपली 10 माइनस ऑफ डी एंड दिस इज इक्वल टू 6। नाउ 3d प्लस टी दैट इज 4d माइनस 10 इधर जाएगा, इसको 16 बनाएगा एंड d की वैल्यू मिल गई दैट इज 4। तो सबसे पहले आपको क्या मिल गया, आपका d का वैल्यू मिल गया, राइट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। तो d की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट किसकी वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं, नेक्स्ट मैं यही सेम लॉजिक मान लो इन दोनों इक्वेशंस पे रिपीट कर देता हूं, ये दोनों इक्वेशंस पे। तो अगर मैं दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट करूं तो आप नोटिस करोगे क्या होगा, 4c माइनस सी, d माइनस 2d, 2 में माइनस 3a, 3b माइनस 4a, 3 वेरिएबल में 1 1 का डिफरेंस आएगा और 4c माइनस सी में 3c का डिफरेंस आएगा। तो ये यहाँ लिख देते हैं, सो दिस विल बी व्हाट 3c एंड माइनस ऑफ d, a और b एक एक बार माइनस के साथ आएंगे, तो a, b और d लिख देते हैं एंड ऑल दिस इज इक्वल टू 24 माइनस 22 दैट इज 2। अब यहाँ से 3c माइनस, अब अगेन सेम लॉजिक, a b d मिला के 10 माइनस c होगा हमेशा, सो 10 माइनस ऑफ c एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो 3c माइनस ऑफ माइनस सी दैट इज 4c माइनस 10 इधर जाएगा 12 बनाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। तो c कितना आ गया आपके पास, 3। नाउ हाउ डू आई सॉल्व a एंड b। तो अब यहां से देखो, आप अब इन दोनों इक्वेशन को छोड़ो, बहुत हो गया उनका काम, आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो, क्योंकि यहां से आपके पास देखो c एंड d तो है ही, इनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं a और b की एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी यहां से, और यही सी डी इसमें प्लग इन कर दोगे तो a और b की लीनियर इक्वेशन मिलेगी यहां से। यही है इस पूरे क्वेश्चन में इक्वेशंस का सॉल्व करने वाला फ्लो। तो लेट्स से सी एंड डी मैंने यहाँ प्लग इन करा, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2b
प्लस 3c मतलब 9 और 4d मतलब 16, 16 एंड 9 इज 25, 30 माइनस 25 वुड बी 5। एक इक्वेशन ये है, और c एंड d यहाँ प्लग इन करेंगे 7 जाएगा, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, a प्लस बी वुड बी 3। तो दोनों को सॉल्व कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एंड बिकॉज b 2 आ जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। दैट मीन्स मेरे पास अब a b c d चारों वेरिएबल्स की वैल्यू बनी हुई है, राइट। सो आई कैन जस्ट सिंपली गो एड एंड राइट ऑल द वैल्यूज। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और c एंड d बट ऑर्डर में आ रहा है, थोड़ा सिंपल सा आ रहा है, 3 एंड 4, तो 1 2 3 4 है, बस शिफ्ट करके लिखना है ना। तो 1 2 3 यहाँ पे कितना 4, और यहाँ पे भी 1 2 और यहाँ शिफ्ट करके 3 एंड 4, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिल दिस टेबल। अब यहाँ से बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन द लॉजिक टू यू, आई विल जस्ट गो हेड एंड राइट ऑल द वैल्यूज इस पूरी टेबल में। विल हैव टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बस बी एंड सी के लिए करना है, आप एग्जैक्टली सारी वैल्यूज को फिट कर सकते हो, राइट। सो आई विल जस्ट गो हेड एंड राइट ऑल द वैल्यूज, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस में मिलते हैं। Okay, now let's take a look at the problems. Now the first problem in playgroup A in 2016. So playgroup A in 2016, what was the total number of children aged less than or equal to 2 years? Less than equal to 2 years कितना हो गया 1 plus 2, that is 3 children. Second problem, what was the total number of children aged 3 years in the year 17 in playgroup B? 17 playgroup E, the children aged exactly 3 years, that would be 6. How many children left from these playgroups in 2018? तो 18 में कितने बच्चे इस playgroup को छोड़ के गए? तो 2018 में कितने लोग छोड़ के गए होंगे आपके, जो 2017 में 4-year-old रहे होंगे, राइट। 18 में वही लोग छोड़ के जाएंगे जो 5 years के हो गए होंगे। तो 18 में 5 years के कौन बच्चे हो गए होंगे, जो 17 में क्या रहे होंगे 4-year-old रहे होंगे। तो 17 में 4-year-old का मतलब क्या हो गया, ये 3, यहाँ का ये 4 और यहाँ का ये 6, दैट इज 13 चिल्ड्रन वुड हैव लेफ्ट दीज प्ले ग्रुप्स इन 2018। ये आगे जाके 5-year-old बन जाएंगे एंड दे विल लीव द प्ले ग्रुप। फाइनली इन 2019 देयर वर 2 1-year-old चिल्ड्रन इन प्ले ग्रुप सी। अच्छा सी की बात कर रहा है, लेट्स से इन 2019 अगेन देयर बी 1-year-old 2-year-old 3-year 4-year-old। तो क्या बोला, इन 2019 देयर वर 2 1-year-old चिल्ड्रन इन द प्ले ग्रुप सी। तो नए वाले जॉइनिंग एक तरीके से इसने दे दिए, तो यहाँ पे कितना है 2 1-year-old सी में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इन प्ले ग्रुप सी। अब ये तो सिंपल है, वही सेम लॉजिक आगे लगाते हैं। ये यहाँ पे जो 6 3 और 9 है, 1 2 एंड 3, ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा ये 9, 6 3 एंड 9। और एवरेज एज निकालना है तो बस ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 2 into 1 is 2, 6 2 is 12, 3 3 is 9, 4 9 is 36। 36 और 9 would be what, 45, 45 और 14 would be 59। सो 59 हो जाएगा आपका टोटल सम ऑफ एजेस। नाउ एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन से। सो 9 plus 3 12, 12 plus 8, 12 plus 8 is 20। So 59 divided by 25.9 divided by 2, so this would be 2.9 something, right? So 2.95, that becomes the answer to the final problem. So I hope you understood the logic to this set. I hope you are able to figure this B and C out yourself, right? Exactly same logic था जो आपका A में अप्लाई करना है। You'll have to make the same equation. Maybe you don't need to make the same equations. वो equation actually same आने वाली है, बस क्या होने वाला था आपका, उनकी वैल्यूज अलग आने वाली थी एंड नंबर्स भी ऑटोमेटिकली फिर अलग आएंगे, right? So I hope you understood this set. If you have again any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.